Divorce decree has not been granted, but restriction of conjugal right. Both the decrees have. Husband is claiming restriction of conjugal right, that has been rejected. Wife is claiming divorce, that has also been rejected. Wife is claiming divorce, I'm for the wife, that has been rejected by the court below. Another court has, where the restriction on conjugal rights application has been filed, that has been rejected by that court, and both these appeals are there, the parties are deciding separately since last more than 12 years, It is possible, that a mutual divorce may take place for that purpose, That is for you to decide. Haan. In few of the cases, we tried to do it. Parties, they agreed and they filed the application. Yes, For that purpose, we are making prayer, Both the parties have come. They are here. Call them. If they can't live, then it's okay. But yesterday, my friend is there. Let us have yes, let us have some of that has worked. There is no point yes, in there is no useful purpose, sir. They cannot decide. Although the husband is willing, as per Mr. Agarwal. Practically, it has to be. Mr. Agarwal, how long they are living separately? Call her here. $12 years, 12 years. Any children? No. Marriage still subsists. Decree has not been granted. If they are living separately for so long years, what is the purpose they are going to achieve? We can't forcefully send her, or the husband or the wife, both. Yes. If wife do not want to go, we can't force her to share a common shelter. समझ गए वो तो बता दिया. He has already said it. Or he is willing to take her right now. She do not want. Yes. What? How can it be forced? No, therefore, both the appeal has to. Both the appeal? Filed by him. That is the only Application for mutual divorce has to be filed, I will persuade my client, not to claim any alimony, I will persuade my client. You think over it, not to. Then file a 13B. If they can't live together, what is the point in carrying on? Alimony, she will live the alimony. What will happen? Jabardasti ka marriage on paper subsists karke, there has to be. Only marriage on paper is subsisting. What is the point? हम साथ में रहेंगे सर. निवेदन इसमें मतलब आप इसको अध्ययन किए होंगे तो आप महसूस किए अभी अध्ययन किए नहीं है. जी सर, करेंगे अभी. मतलब बहुत मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा सर ससुराल पक्ष के द्वारा. मैं अपनी पत्नी को साथ रहने, इसके ऊपर भी दबाव था. मतलब आप जो धारा 13 का केस मतलब दुरुक से जीत के मैं आया हूँ, उसके बाद ये लोग अपील किए हैं सर. मेरा निवेदन है सर. नहीं सर, मेरे को बहुत शारीरिक यातना थे वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं रह सकती वहाँ पे. कुछ भी हो सकता है मुझे. इसका वाइस वर्सा है. यदि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते और वाइफ कहती कि मैं साथ में ही रहूंगी, तो क्या आपको जबरदस्ती भेज सकते हैं? मतलब दुरुक के आप ये बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि वाइफ साथ में रहे, आप तैयार हैं. इसका उल्टा चलिए, यदि वाइफ बोलती कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप बोलते कि मैं नहीं रहना चाहता, इससे मुझे खतरा है. यदि ऐसा होता तो आप क्या चाहते? मैं तो हर कंडीशन में साथ में रहने को तैयार हूँ सर. मैं विधिवत एकदम नहीं समझ रहे. अगर पति पत्नी में एक भी कोई सहमत नहीं होते तो कैसे हो सकता है? पेपर में चलता रहेगा, ऐसी चलेगा 10-12 साल से अलग हो. मतलब दुरुक कोर्ट में भी ऐसी मतलब एक प्रक्रिया चली थी, और उसके बाद उम्र तो बढ़ाए जा रहे हो 10-12 साल. देखिए, जज महोदय ने बैठाया थे कमरे में, उसके बाद जज महोदय के समक्ष इन्होंने कहा था. उसके बाद इनके जो परिवार के सदस्य दबाव डाले, फिर उसके बाद हम लोग उनको लेने भी गए. नो सर, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे परिवार के सदस्य नहीं दबाव डाल सकते सर. मैं भी तो कुछ एजुकेटेड हूँ ना सर. 9 साल 3 महीना तक साथ में रहने के पश्चात ये घटना, और मैंने सर 9 साल 3 महीना साथ में रहे और इससे ज्यादा समय से अलग है. 10-12 साल हो गया सर. ये केस चल रहा है इसलिए.
मतलब ये जबरदस्ती की मतलब वो हो रहा है। ये तो सामने खड़ी है तो हाँ, कहना इसीलिए चाह तो रही मैं है भी कि बोल नहीं रहा हूँ रहना सर, चाहती। सामने नहीं मैं बोल सर, रहा हूँ, प्लीज सर, सामने नहीं बोल रहा हूँ सर। 9 साल एकदम। तक के मैं 9 बहुत साल शारीरिक 3 महीने मानसिक तक पीड़ा बहुत आराम सही से हूँ रही सर। है और उसके नाम से मैंने मतलब प्रॉपर्टी भी लेके रखी। नहीं सर, मतलब वो इनकी पैसा जो मेरे नियत ही है, से मतलब जो प्रॉपर्टी इनके लिया परिवार गया के है सदस्यों उनको। की नियत है। दोनों एक साथ प्रेम पूर्वक सम्मानजनक तरीके से रह सकते हो? जी कोई सर, एक बिल्कुल। भी जैसा अगर ये तैयार नहीं हुई मैं तो? जो ये बोले कि वो अभी मैं लिखित में दे दूंगा, नहीं सर, मैं तो नहीं आप आदेश मानती करिए उनकी। सर। और अब ये नहीं आपका मान आदेश सकती होगा तो सर। मैं इसको बहुत प्यार और सम्मान के साथ अपने सदस्यों के बीच में लिखित में एफिडेविट दे के ले जाऊंगा, अभी आप आदेश कर देंगे तो। और कुछ भी होगा उसका जुर्माना मतलब मैं भरूंगा, अगर इसको 1 पैसे का भी होगा। 9 साल 3 महीना तक ये एक, जितना भी ये केस आप स्टडी कर रहे हो उसमें एक भी पक्ष मतलब शब्द इसमें Decided कहीं on नहीं लिखा merits. है। There's no point. हाँ, They are not willing, they are not understand. We'll decide, we'll hear it after tea, after lunch. Huh? Sorry? Next week. Next week. Next week, no, after a week आएगा फिर. After a week. चलिए ठीक है, उसके बाद. That may be required. In between समझा के देखते हैं। In between, try to do it. If you also try to just have a conversation. इसलिए मैं कहता मैं मेडिसिन में भेजने की कोशिश करूंगा। देखिए हाँ? मेडिसिन में हो सकता है समझ जाए। मेडिसिन में मेडिटेशन हुआ है इसमें? इसमें नहीं हुआ है अभी। आप मेडिटेशन मेडिसिन भेजते देखते हैं. मेडिसिन नहीं हुआ है नहीं पहली हुआ. बार। This I would show that the mediation has not been explored in this case. Encourage both the parties to appear before the. कब बताएं? आज ही चले जाते हैं मैडम। आज ही चले जाते हैं, दोनों आए हैं। कहाँ के हैं? पता एड्रेस क्या है? नहीं दुर्ग से आई है हमारे क्लाइंट। आप कहाँ से हैं? भाटापारा। Today is not proper. On 1st February. Meditation center में आइए, जाइए वहां, have a conversation, then come back. Okay, we'll hear it. Explore the meditation. चलिए.